الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله عليم بذات الصدور وقال تعالى في موضع آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في موضع آخر ويؤثرون على أنفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا رب، اس پوری گیلیکسی یا اس پورے سنسار کا اگر کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی رازق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسی کی مرضی سے ہی ساری چیزیں دنیا میں چلتی ہیں. اگر ساری طاقت، دنیا کی ساری طاقت اس بات پر یکجا ہو جائے، اس بات پر اکٹھا ہو جائے کہ ہم یہ کام کریں گے اور ادھر سے اللہ چاہے کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے تو میرے دوستوں بزرگوں وہ کام نہیں ہو سکتا. اگر ساری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے اس بات کے لیے کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام ہوگا وہی جو اللہ چاہے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ کی ملکیت کا، اس کائنات کے اللہ کے مالک ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ مالک کون ہے. یعنی اللہ اس آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، مخاطب کر کے ایک چیلنجنگ مومنٹ کریٹ کر کے بتا رہے ہیں. کس سے چیلنج کر رہے ہیں؟ انسانوں سے بھی اور جناتوں سے بھی، کہ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تم مل کر کے بھی اس بات پر اکٹھا ہو جاؤ، اس بات پر یہ چاہ لو کہ تم اپنی مرضی کے مطابق میری نظر سے بچ کر بھاگ نکلو گے یا کوئی کام کر جاؤ گے. نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر حکم اور صرف سلطان کا چلتا ہے، شہنشاہ کا چلتا ہے، رب کا چلتا ہے، اور شہنشاہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. میرے دوستو بزرگوں، جب اللہ اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا خالق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بچنے والے انسانوں کو اور مخلوقوں کو کچھ چیزوں کا وقتی طور پر مالک بنایا ہے. ایک انسان ہے، اللہ نے انہیں گھر دیا ہے تو وقتی طور پر وہ اس گھر کا مالک ہے. ایک انسان ہے، اللہ نے انہیں کچھ پیسوں سے یا دولتوں سے نوازا ہے تو وقتی طور پر وہ اس چیز کا مالک ہے. ایک انسان ہے، اللہ نے انہیں دکان دی ہے جس کے اندر وہ بزنس کیا کرتا ہے، تجارت کیا کرتا ہے تو وقتی طور پر وہ اس دکان کا مالک ہے.
اور اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے انسانوں کو وقتی طور پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ جس طریقے سے چاہے اپنے مال میں یا اپنے گھروں میں یا اپنی دکانوں میں جس طریقے سے چاہے وہ تصرف کرے، جس طریقے سے چاہے اس کو چلائے، اتنا اختیار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چونکہ اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے اندر کچھ وقت دیا ہے، تو مقصد تمہارا دنیا ہی نہیں ہے۔ تم دنیا کے اندر ہی ایگریمنٹ لے کر کے نہیں آئے ہو کہ تم ہزاروں سال یا 5000 سال یا ابدی طور پر پرماننٹ اس دنیا کے اندر رہو گے، ایسا ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا تم جو ہے خوشنودی کو پاؤ گے، رب کی رضا کو حاصل کرو گے، رب کے منشا کے مطابق چل کر کے یہ کر سکتے ہو۔ اگر تم رب کو خوش کرنا چاہتے ہو، رب کے سامنے کل تم سر بلند ہونا چاہتے ہو، رب کے سامنے تم اپنا مقام، اپنا ویلیو اور اپنا معیار بنانا چاہتے ہو، تو رب نے ایک راستہ دکھایا، بتلایا۔ کیا بتلایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نیکی تک، یا پھر جس کو کہتے ہیں کہ نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم میں سے وہ شخص اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کرے، اپنی محبوب ترین چیزوں کا صدقہ نہ نکالے، اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے لیے وقف نہ کرے۔ کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پڑھ کر کے بتایا کہ اس وقت صحابہ کرام کتنے ہی ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن کے پاس بہت سارے کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے، کہ ہیون کا فیل آتا تھا جہاں سے، کہ جہاں پر ان کا کاروبار چلتا تھا، اس کے ذریعے سے بہت سارے ان کے پاس پیسے آتے تھے۔ یا کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جن کے پاس ان کی محبوب ترین چیز ان کی سواری ہوا کرتی تھی، عرب نسل کا گھوڑا ہوا کرتا تھا۔ جیسے آج ہندوستان کے اندر اپنے علاقے میں دیکھیں، ہیرو ہونڈا کے مقابلے میں یا دیگر بائکس کے مقابلے میں R15 کو فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟ R15 کو فوقیت حاصل ہے۔ دیگر کیا کہتے ہیں بائکس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ بلٹ کو فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل ان کو فوقیت حاصل ہے، KTM کو فوقیت حاصل ہے، اور دیگر گاڑیوں کے مقابلے میں رینج روور کی فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ تو ٹھیک اس وقت کیا کہتے ہیں کہ عرب کے اندر سب سے زیادہ نسلی ٹائپ کی جو سواری ہوتی تھی، سب سے مضبوط جو سواری ہوتی تھی، جن کا ایک مارکیٹ میں کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑا ویلیو تھا، جن کی قیمت مارکیٹ میں بہت زیادہ تھی، تو وہ عربی نسل کا گھوڑا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو اس وقت انہوں نے اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کے راہ میں صرف کیا، اللہ کے راہ میں لگا دیا۔ تو جب ہندوستان کے اندر کیا کہتے ہیں کہ ایمان آیا، اسلام آیا، تو اس وقت ہمارے اکابرین نے بھی جب ان آیتوں کو سنا تو اس کے بعد انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی۔ اکابرین نے، ہمارے علماء نے، اکابرین نے یا ہمارے پوروجوں نے، جو یا پھر زمینداروں نے، راجاؤں نے، مہاراجاؤں نے یا ہمارے پرداداؤں نے بہت ساری زمین یا بہت ساری ایسی چیزیں جو ان کے نزدیک محبوب ہوا کرتی تھی، انہوں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا۔ چونکہ وقف کرنے کے بعد انسان کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ انسان اگر کوئی چیز اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے، چاہے وہ کاغذی طور پر کرے، چاہے وہ ڈاکومنٹ کے طور پر کرے، چاہے وہ صرف زبانی طور پر کرے، زبان سے بول کر کے کرے، وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں وقف ہو جاتی ہیں۔ اب اس انسان کا کوئی بھی اس کے اوپر تصرف حاصل نہیں ہوتا ہے، کہ اب انسان اس کے ذریعے سے تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے وقف زمین کی، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے کی،
تو وہ अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कहते हैं, अब उसको दीगर चीजों के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अपना बिजनेस वहां से नहीं चला सकता है, या उसको फिर अब खरीद करके फिर बेच नहीं सकता है, या फिर उसको भिजवा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के लिए वो चीजें वक्फ कर दी है, अल्लाह के अंदर वो चीजें दे दी है। एक इंसान है जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीन के लिए वक्फ किया, अपनी जमीन को कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया, वो भी अपनी जमीन को अब बेच नहीं सकता है, वो अपनी जमीन को दोबारा वहां से खरीद नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन अल्लाह के लिए वक्फ हो गई। एक इंसान है जिन्होंने मुसाफिर खाने बनवाए हैं, कि आम मुसाफिरीन जब शहर के अंदर आते हैं, उनके पास रुकने का या ठहरने का कोई भी मकाम नहीं होता है, तो वो उसके अंदर ठहरने का इंतजाम करवाता है, तो अब उस चीज को बेच नहीं सकता है, यानी उसको बेचे बगैर वक्ती तौर पर नहीं बल्कि हमेशा के तौर पर उससे एक मफाद आम हासिल होता है, आम लोगों को फायदा पहुंचता है। कुरान करीम के अंदर दो चीजों की तरफ इशारा किया गया। एक तो है कि इंसान अगर कोई चीज अपनी महबूब चीज क्या कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में लगाता है तो वक्ती होता है। मतलब हमने 5 रुपए का सदका किया, 10 रुपए का सदका किया, 20 रुपए का सदका किया, तो इसका फायदा हमें वक्ती तौर पर मिलता है कि हमने सदका किया, जितना सदका किया उतना फायदा मिला। एक इंसान है जिन्होंने कोई चीज दी खाने की शक्ल में किसी गरीब को या मुहताज को या जरूरतमंदों को या फिर अपने रिश्तेदारों को या अपने अकरीबा को खाना खिलाया, तो उसका फायदा एक वक्ती तौर पर मिलता है कि जब तक खाना खिलाया एक मरतबा तो एक मरतबा उसका सवाब मिला, 2 बार खिलाया तो 2 मरतबा सवाब मिला। उन्होंने सदका 5 रुपए दी तो उनको 5 रुपए का सदका मिला, 10 का दिया तो 10 का सदका मिला। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों क्या कहते हैं कि एक ऐसा सदका, ऐसा बिल जिसके बारे में कुरान में तारीफ की गई, कुरान में उसी की जिस चीज की तरफ उकसाया गया वो है दायमी तौर पर किसी चीज को अल्लाह के रास्ते में लगाने का। एक इंसान है जिन्होंने मस्जिद के लिए अपनी जमीन वक्फ कर दी है, एक इंसान है जिन्होंने क्या कहते हैं मदरसे के लिए अपनी जमीन को वक्फ कर दिया है, एक इंसान है जिनने खानकाह के लिए जहाँ पर तसव्वुफ का काम होता है, जहाँ पर अल्लाह अल्लाह के नारे लगते हैं, जहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती है, जहाँ पर अल्लाह के जिक्र से आवाज को बुलंद करके ईमान का दिल का तज़किया किया जाता है, उनके लिए जमीन वक्फ कर दी है। तो ये चीजें दायमी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि इंसान के मरने के बाद भी ये चीजें चलती ही रहती है। कि इंसान मर करके चला गया, इन्होंने जमीन वक्फ की मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए या फिर खानकाहों के लिए या मुसाफिर खानों के लिए या किसी भी मिल्ली तंजीमें उनके ताल्लुक से की, तो जब तक उनका फायदा लोग उठाते रहेंगे उनके जरिए से, तो उस वक्त तक वाकिफ को यानी वक्फ करने वाले को उसका सवाब पहुंचता रहेगा। इसी चीज की तरफ इशारा करते हुए कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी तक हरगिज नहीं पहुंच सकते जबकि अपनी महबूब तरीन चीजों में से खर्च करना न सीख लो। तुम खर्च करते हो यकीनी तौर पर फिर क्या कहते हैं कि तुम नेकी तक पहुंच सकते हो। दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब, कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना सर मशरिक से लेकर के मगरिब तक यानी पश्चिम से लेकर के पूरब तक फेर दो। नेकी की अगली वजाहत ये बयान फरमाई गई वो आसल माल अला कुल्लिही ज़िल क़ुरबा, नेकी ये है कि तुम ईमान अल्लाह पर रखते हुए, नमाज कायम करते हुए, रोजा को अदा करते हुए तुम क्या कहते हैं कि अपने माल को अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो, तुम अपने माल को मुसाफिरों के ऊपर खर्च करो, तुम अपने माल को उन लोगों पर खर्च करो जो कि साइलीन है, जो मांगने वाले हैं, अपने माल को उन लोगों पर खर्च करो जो कि महरूमीन है, जो नहीं मांगते हैं किसी वजह से। आप अपनी जरूरत से क्या कहते हैं अपनी महबूब तरीन चीजों में तो उनको दे आते हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम, यहाँ तक ये बताया कि अगर तुम्हारे दिलों के ऊपर, तुम्हारे ज़हनो दिमाग के ऊपर इस चीज का बोझ होता है कि तुम्हारे दिल के ऊपर सांप गुजरता है, हमें तो खुद ही जरूरत थी, लेकिन अपनी जरूरतों को थोड़ी महदूद करके थोड़ा लिमिटेशन के हिसाब से वहां पर दूसरों की जरूरतों को पूरी करने में लग जाते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के बारे में कुरान में कहते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उलाइका हुमुल मुहतदून, ये लोग कामयाब होने वाले।
یہ لوگ آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. انسان کی زندگی وہی بہتر ہوتی ہے جو آخرت کی زندگی بہتر ہوتی ہے. میرے دوست بزرگوں، اس طرح کی باتیں کیوں آ رہی ہیں سامنے میں؟ آتی تو بلا وجہ بھی لانی چاہیے تھی، لیکن ابھی ملک ہندوستان کا آپ جائزہ لیں. ملک ہندوستان کے اندر آپ جائزہ لیں. پچھلے جمعہ ہم نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اپنی تاریخ کو نہیں پڑھو گے، آپ اپنی ہسٹری کو نہیں پڑھو گے، تو آپ کی داستان مٹا دی جائے گی. آپ کا وجود ہندوستان سے ختم کر دیا جائے گا. میرے دوست بزرگوں، آخر کیوں وجہ کیا ہے کہ ہم ایک ایمان والے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں. آج ملک ہندوستان کے اندر دیکھیں کہ 8 اگست کے اندر وقف ترمیمی بل کو لایا گیا. ایک ایسا بل جو کہ ہمارے حق میں بالکل بھی مفید نہیں تھا. ایک ایسا بل وقف بورڈ جو کہ 1923 کے اندر سب سے پہلے بنایا گیا تھا. اس کے بعد جنگ آزادی 1947 کے بعد اس کا قانون 1954 میں بنا تھا. پھر یکے بعد دیگرے 1995 تک کیا کہتے ہیں کہ اس کا قانون بنتا گیا تھا. یعنی جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جنہوں نے بھی قربانی دی ہے، اللہ کے لیے جنہوں نے بھی اپنی جائیداد کو وقف کیا ہے، ان کی حفاظت کے تعلق سے ایک وقف بورڈ کیا کہتے ہیں وجود میں آیا تھا، اور سب کچھ صحیح کام ہو رہا تھا. لیکن موجودہ حکومت نے اس کو اس نظریے سے دیکھا. پہلے تو کیا کہتے ہیں ہمارے 3 طلاق کا مطلب یہ کیا گیا، سامنے میں لایا گیا. پھر CAA لا دیا گیا. پھر کیا کہتے ہیں کہ NRC لا دیا گیا. یعنی اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. ہم ہندوستان کے اندر اتنی چیزیں اپنی آنکھوں سے چشمدید گواہ ہیں. ڈیلی کے بیسس پر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ٹی وی ہے تو نیوز چینل میں دیکھتے ہیں. آج تک کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا ہے، اسمارٹ فون ہے، تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں اس کے سلسلے میں متحرک نہیں ہو رہے ہیں، اس کے سلسلے میں فعال نہیں ہو رہے ہیں. کیوں فعال نہیں ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ پریشانی دوسروں کو ہو رہی ہے تو ہم کو کیا دقت ہے؟ ہم کو تو کھانا مل رہا ہے، ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں. میرے دوست بزرگوں، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ان کے ہوتے ہوئے آپ اپنی قوم کے تعلق سے فکر مند نہیں ہوتے ہیں، پرسنل طور پر ہر شخص انڈیویجولی فردی طور پر اگر اپنے قوم کا فکر مند نہیں ہوتا ہے، تو یاد رکھیں آج آپ کو آپ کے ایمان سے روکا جاتا ہے. مہاراشٹر کے علاقے میں، تلنگانہ کے علاقے میں یا پھر دوسرے علاقوں میں سر یہ چیزیں آپ پر بھی حاوی کی جائے گی. یعنی حکومت کا پورا نظریہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے انڈر میں جتنی بھی زمینیں موجود ہیں، جتنا بھی وقف بورڈ کا جو بھی قبرستان ہے، جو مسجدیں ہیں، جو درگاہیں ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں جو خانقاہیں ہیں، جو مسافر خانے ہیں، ان کے تعلق سے وقف بورڈ کے تعلق سے کیا کہتے ہیں ایک بل لا دیا. ایک بل کیسا لایا کہ اس وقت جو ہمارے پوروج ہوا کرتے تھے، جو ہمارے باپ دادا آباؤ اجداد ہوا کرتے تھے، انہوں نے جتنی بھی زمینیں وقف کی، چاہے زبانی طور پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حیات کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو وقف کر دیا اللہ کے لیے زبانی طور پر، تو اللہ کے لیے ہو جاتی ہے. لیکن سرکار نے ایک نیا قانون پیش کیا، کیا کہتے ہیں کہ اگر وقف کرنے والا زبانی طور پر کوئی چیز وقف کرتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کی چیز کو وقف نہیں مانا جائے گا. دوسرا نظریہ یہ پیش کیا کہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وقف کرنے والا اگر کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس کے لیے مسلمان ہونا، اس کا 5 سال تک مسلمان ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کسی نے وقف کرنے والے نے 4 سال پہلے کیا اسلام قبول کیا ہے، اگر ان کی مدت ابھی 5 سال نہیں ہوئی ہے تو ان کی وقف کی ہوئی چیز کا، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، ان کا اعتبار نہیں ہوگا اور ان کی اس چیز کو کیا کہتے ہیں سرکار اپنے انڈر میں لے لے گی. تیسری چیز انہوں نے جو لائی ہے، کیا لائی ہے کہ وقف بورڈ کے اندر جو بھی اراکین رکن ہوتے تھے، جو کمیٹی کے لوگ ہوتے تھے، جو کیا کہتے ہیں چیئرمین ہوتے تھے، اس سے پہلے تو کیا کہتے ہیں کہ ہر جگہ مسلمان ہوتے تھے. لیکن انہوں نے بل کے اندر یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، اس میں سے کیا کہتے ہیں کمیٹی کے لوگوں میں سے اگر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں میں سے 8 لوگ یا 7 لوگ غیر مسلم ہوں گے. بتائیے سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ جتنی بھی ہندو کی تنظیمیں، جتنی بھی غیر مذہبوں کی تنظیمیں ہیں، غیر دینداروں کی تنظیمیں، کیا ان تنظیموں کے اندر مسلمان کی کوئی شراکت ہے؟ کیا کسی عبداللہ کو وہاں پر کا رکن بنایا جا رہا ہے؟
या फिर किसी क्या कहते हैं हीरो को वहां पर का रुकन बनाया जा रहा है, या फिर क्या किसी कलीग का वहां पर रुकन बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है इस वजह से कि हम मुसलमान हैं। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो कि वासिफ अपनी नीयत से अपनी मिल्कियत को हमारे अंडर में अल्लाह के ताल्लुक से देता है, तो फिर उस ताल्लुक से सरकार को ये एक्ट लेने का, ये एक्ट बनाने का हकदार किसने बनाया? मेरे दोस्त बुजुर्गों, वजह इसकी यही है कि बातिल के गलत मंसूबे हैं, बातिल के गलत नजरिए हैं। वो ये चाहती है कि सबसे पहले इनको मजहबी चीजों से हम छुट्टी करें, उसके बाद फिर क्या कहते हैं इनके ऊपर हम जबरदस्ती का अपना दीन हावी कर देंगे। आज मस्जिदें हम इनसे छीन लेते हैं, कल मदरसे इनसे हम छीन लेंगे, परसों इनसे खानकाहें छीन लेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बदआमालियों की वजह से हो रहा है। आज हमने मस्जिद को आबाद करना छोड़ दिया। आपने देखा ना अभी कि बाबरी मस्जिद जो 400 साल पुरानी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद जो 400 साल पुरानी मस्जिद थी, वो हमसे छीन ली गई। हुकूमत ने ये भी दावा किया कि क्या कहते हैं कि वाकई में बाबरी मस्जिद ही थी और यहाँ पर किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी हुकूमत ने आस्था के बेस पर कोई इंसान यहाँ से अकीदत रखता है उसको दे दिया जाए। अजीब मसला है भाई। मान के चला घर आपका है, अकीदत हमको हो गई, इस घर से घर आप ही का है, कागज भी आप ही का है, लेकिन क्या कहते हैं आपका घर हमको मिल जाए। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। दोस्त बुजुर्गों, पिछले जुम्मा में मैंने कहा था कि आप इस हिंदुस्तान का स्पेन जैसी तारीफ मत करवाना, उनदुरुस जैसी तारीफ मत दोहराना। कि उनदुरुस और स्पेन के अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले वहां की मस्जिदों को, खानकाहों को वहां से क्या कहते हैं हुकूमत ने अपने अंडर में ली, उलमाओं को खत्म किया गया। आज देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। अल्लामा इकबाल का जुमला फिर से वही वाला याद रखिएगा जिन्होंने कहा था कि इन मदारिस को रहने दो, इन मसाजिद को रहने दो, इन मसाजिद को रहने दो, वरना मैं यूरोप और स्पेन के हालात देख करके आया हूँ। खुदा की कसम, अगर तुम वहां पर जाओगे तुमको लगेगा ही नहीं इस बात का अंदाजा कि यहाँ पर 850 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। 850 साल तक यहाँ ईमान वालों ने हुक्मरानी की है। वजह क्या की है मेरे दोस्तों बुजुर्गों के, सारी चीजें मलिया मेट हो गई, सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर बातिल के मंसूबे हर दिन हमारे खिलाफ होते हैं। आज हमने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, आज हमने खानकाहें आबाद करनी छोड़ दी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अफसोस की बात है, खुदा न खास्ता हमसे मस्जिद ही छिन जाएगी, हमसे मदरसा ही छिन जाएगा, तो नमाज कहाँ अदा करोगे? कहाँ अदा करने जाएंगे नमाज? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हमारे मदरसा ही छिन जाएगा तो अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए कहाँ ले चल जाओगे? कहाँ से तालीम दोगे? क्या हमें पता है? क्या खुद से हम क्या कहते हैं कि एजुकेटेड हैं, या फिर हम खुद से क्या कहते हैं दानिस्ता हैं कि खुद से बहुत कुछ जानते हैं? हमें तो इतना भी पता नहीं है कि कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं तो तीन दुआ मिनहा खलकनाकुम और फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसके अलावा हमें दुआ तक भी नहीं आती कि आगे की क्या दुआ है। आती है दुआ? आप में से कितने लोग हाथ खड़ा करें कि जिनको दुआ आती आगे की? नहीं आती हो। हमको इतना भी पता नहीं है कि अगर कोई शख्स मर्द मरता है तो मर्द के पीछे हम जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो हम उसके पीछे कौन सी दुआ पढ़ते हैं? किनको पता है? हाथ उठाएं तो किनको पता है पता? नहीं पता। उनके पीछे कौन सी दुआएं पढ़ते हैं? अगर कोई नाबालिग बच्चा मर जाता है तो क्या उसके लिए शरीयत के अंदर कोई अलग से दुआ आती है जो नमाज जनाजा में क्या कहते हैं नमाज जनाजा के अंदर पढ़ी जाती है? हमें उसका भी इल्म नहीं है। नाबालिग बच्चियां मर जाती हैं तो उनके पीछे शरीयत कौन सी दुआ पढ़ने की इजाजत देती है? तो हमें उसका भी इल्म नहीं है। हमारी नमाज तक हम बच्चों को कहाँ से पढ़ा पाएंगे? कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जो कौन क्या कहते हैं कि सुबह बेदार होती है 9-10 बजे, वो बच्चों के तालीम के सिलसिले में कहाँ से फिक्रमंद होगी? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखिएगा कि आज आपसे बाबरी मस्जिद छीनी गई है, आज आपके ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर पूरे तौर पर तालाबंद होकर के वहां पर कार्रवाई की जा रही है। ये तो बड़े बड़े स्टेजेस पर ऐसा कर करके हमारी गैरत, हमारी अहमियत, हमारे जोश वलवले को नापा जा रहा है, परखा जा रहा है कि आज का मुसलमान, आज का ईमान वाला, उनके अंदर कितनी ईमानी कैफियत बाकी है। आज पता चलता है कि आज देखें कि एक ईमान वाला है, मस्जिदों के ताल्लुक से कोई फिक्रमंद नहीं है कि चले 5 वक्त नमाज ही अदा कर लें या नमाजों में थोड़ा सा पहले ही आ जाए, लेकिन नहीं, शादी के एहतमाम में टोटल 10 दिन खर्च करता है। कितने दिन? 10 दिन खर्च करता है।
10 दिन तो शादी से मुत्तसिल जो अय्याम होते हैं उन दिनों में 10 दिन लगाता है, वरना शादी से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले 6 का 6 की फटका फटकी करता है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। कि अल्लाह ताला को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि ऐसी चीजें जहां पर रस्म और रिवाज के एतबार से पढ़ने के सिलसिले में हमें कोई जरूरत नहीं थी, जहां पर हम एक दिन के लिए नामी तौर पर सिर्फ वाहवाही के तौर पर अंबानी बने बैठे होते हैं, दूसरे दिन फिर जाकर के वही कामकाज करने लगते हैं। तो एक दिन के लिए नामो वजूद के लिए, एक दिन के लिए खामखा के नकली वाले अनंत अंबानी बनने से क्या फायदा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बहुत ही बड़ा हम नुकसान कर रहे हैं मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। एक और बिल पेश की गई, उसके अंदर ये लिखा गया कि जितने भी ये वाकिफ लोग जो होंगे, वक्फ करने वाले जो लोग होंगे, तो इसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर इनकी कागजें मजबूत नहीं होंगे, इनकी कागजें मजबूत नहीं होगी, तो उस वक्त क्या कहते हैं कि इनका खानदान वाला या इनका रिश्तेदार को ये क्या कहते हैं दावा पेश कर दे कि हमारे आबा व अजदाद ने ये जमीन दी है, तो उस वक्त क्या कहते हैं वक्त तरमीमी को वापस, उसको जमीन वापस करेगी या सरकार के हवाले वो मामला जाएगा और वहां असेंबली में या फिर क्या कहते हैं इसमें पार्लियामेंट के अंदर से जो भी फैसला होगा वहां के जजेस होंगे, जो फैसला कर देंगे उस बुनियाद पर फैसला हो जाएगा। इतनी अफसोस की बात है कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले हमारे बाप दादाओं ने अपनी खुलूस नीयत के साथ, अपने इखलास के साथ जमीनें अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी और ये एक्ट बना दिया गया। जाहिर सी बात है कि आज के लोग, जितने भी लोग होंगे, जिनमें से 90%, 95% तमा के लालच में, तमा होते हुए, तमा करते हुए, लालच के अंदर पड़ते हुए यही कहेंगे कि ये जमीन इस्तेमाल में नहीं है, हमारे बाप दादा ने दे दी तो क्या है, लेकिन कागज नहीं, हमको जमीन वापस की जाए। बिल्कुल वापस इस तरह के दावे हो सकते हैं, इस तरह के उनके खानदान वाले या उनके वरसा लोग जो वारिस हैं, इस तरह के दावा अगर कर देते हैं तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो वक्त की हुई जमीन है, जो मुसलमानों के फायदे के लिए रखी गई है, आम मोमिनीन के फायदे के लिए रखी गई है, तो वो तो हुकूमत के अंडर में चली जाएगी। हुकूमत चाहे अगर क्या कहते हैं कि वक्त करने वाले के खानदान की तरफ आधा टुकड़ा दे देगी, बाकी चीजों को अपने अंडर में ले करके वहां पर कुछ भी वो बनवा सकती है, कुछ भी अपने सही अपना कोई भी बना करके अपना बिजनेस सरकारी खड़ा करके उसके बाद क्या कहते हैं कि हुकूमत अपना पैसा बटोरेगी। मेरे दोस्त बुजुर्ग, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस का मकाम है। और वाकई में अगर ये एक्ट पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, दावा करने वालों की कमी नहीं है। आज देखें सड़क के अंदर कि सड़क में जहां पर से रास्ता बनता है, रास्ता वहां पर लोगों ने घर बना करके खड़ा कर दिया है, वहां पर लोगों ने घर बना करके खड़ा कर दिया है कि अगर उनकी जमीन 1 गुण है, 4 गुण है, 1 कट्ठा है, तो हमेशा देखेंगे मुसलमानों के अंदर जमीन थोड़ा सा 4 इंची 5 इंची बढ़ाने के बना रहता है कि जमीन जहां पर थी उनकी वहां पर छज्जी निकलने का नहीं काम था, उन्होंने छज्जी भी निकाल डाली। जहां पर एक रास्ता है आम मोमिनीन के चलने के लिए, वहां पर उन्होंने क्या कहते हैं सीढ़ियां लगा दी आगे की तरफ। मेरे दोस्त कितने अफसोस का मकाम है, आज का मुसलमान अगर उस जमाने की तरफ होता तो यकीनी तौर पर क्या कहते हैं ये चीजें वक्फ नहीं करता। चले हम कोई चीजें वक्फ अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें तो करना चाहिए था, क्योंकि नेकी के हुसूल तक हम उसी वक्त तक पहुंच सकते हैं जबकि हम अपनी महबूब तरीन चीज को खर्च करते हैं। लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने जो चीजें हमारे फायदे के लिए उन्होंने वक्त कर डाली है, कम से कम इसकी तो हिफाजत कर लें, कम से कम इसको तो बचा लें। अगर मस्जिद की हिफाजत के ताल्लुक से हमारे शैतानी खोपड़े के अंदर ये दिमाग में ये बात नहीं घुसती है कि इसकी कैसे हिफाजत की जा सकती है, तो कम से कम अपने खानकाह के या फिर इमाम बारही की हिफाजत के ताल्लुक से तरमीमी बिल के खिलाफ क्या करते हैं कि एहतजाज कर लें। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो यकीन जानिए कल हो करके जब आप मरेंगे, जब कल हो करके आपका इंतकाल होगा, तो आपको सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट से क्या कहते हैं इजाजत लेनी पड़ेगी। आपके कब्र खोदने के ताल्लुक से आप ही की जमीन है, आप ही के बाप दादाओं ने उनको वक्त किया है, लेकिन कब्र खोदने के ताल्लुक से आपको सबसे पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। और जब वो इजाजत देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, क्या करेंगे, अपनी लाश को क्या करेंगे, क्या करेंगे अपनी लाश को, बताइए। सोचने वाला मकाम है या नहीं? इनमें से हर शख्स मरने वाला है, हर शख्स की जान बहक होने वाली है। कहते हैं ना, दुआ पढ़ते हैं ना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम इसी जमीन से पैदा हुए,
वफीहा नुईदुकुम, फिर इसी में हम लौटाए जाएंगे दोबारा, यानी कब्र के अंदर जाएंगे। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा फिर क्या कहते हैं कि हम यहीं से उठाए जाएंगे। और उसके बाद एक दुआ पढ़ते हैं क्या वग़फिर लना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क्या व अंतुम सलक्तुम व बिल असर, क्या कहते हैं कि ए कब्रिस्तान वालों अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, कि ए कब्रिस्तान वालों तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फर्क यह है कि हम भी कल यहाँ पर आने वाले हैं, कि तुम पहले आए हो, उसके बाद हम भी तुमसे जल्द ही मुलाकात करने वाले हैं। ये बात कह करके आते हैं, क्योंकि अल्लाह से हमारा एग्रीमेंट है नहीं दुनिया में हमेशा रहने का, हमेशा बाकी रहने का। अगर किसी को इस दुनिया के अंदर मुकम्मल तौर पर हमेशगी के तौर पर किसी को जीने का हक था, जिनकी मर्जी पूछी गई थी, तो वो आकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। लेकिन उन्होंने भी क्या कहते हैं कि अल्लाह की मुलाकात को तरजीह दी। जब उन्होंने अल्लाह की मुलाकात को तरजीह दी, तो हम में से आप में से क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे पूछने के लिए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे पास पूछने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे, बल्कि हम ना चाहते हुए भी मर करके यहाँ से जाएंगे। कोई शख्स अगर प्लानिंग कर रहा हो उस बात का कि हमारे पास 2 बच्चे हैं या 2 बच्चियां हैं, जिसका काम निपटा देंगे, यानी शादी ब्याह कर देंगे, सेट कर देंगे, उसके बाद फिर हम आराम से तब मरेंगे। अरे भाई, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदू कैदा, कि तदबीर तुम भी कुछ करते हो, इस तदबीर रब करता है, वो काम वही है जो कि रब जानता है। ऐसा भी बहुत सारे हादसा देखे गए जहां पर शादी का पूरा माहौल बनाया गया, जहां पर फिरंगी तहजीब को लाया गया, जहां पर डांसिंग शो लगाया गया, जहां पर क्या कहते हैं कि गाना बजाया गया, जहां पर माज़अल्लाह ऐसी ऐसी हरकतें की गई। वहां से उसी दिन या उसी के आगे पीछे 1-2 दिन क्या कहते हैं बहुत सारे जनाजे उठे। मजलिस में जितने भी लोग, इनमें से कितने लोग हैं जो कि दावा कर सकते हैं कि हम अगले 10 साल तक जिंदा रहेंगे, या कोई दावा कर लेगा अगले 20 साल तक रहेंगे? हदीस शरीफ के अंदर आता है इनमें से जितने भी लोग हैं 100 साल के बाद इनमें से किसी को तुम देखोगे तो नहीं पाओगे, इल्ला माशाअल्लाह, एक आध का एतबार नहीं होता है। आलू की बोरिया के अंदर 1 पीस 2 पीस प्याज डाल दो तो क्या कहते हैं कि वो प्याज का बोरिया नहीं बन जाता है, वो आलू का ही कहलाता है। ठीक है, अगर प्याज के बोरिए के अंदर 4 पीस मिर्च का डाल दो तो मिर्च का बोरिया नहीं कहलाता है, वो प्याज का ही बोरिया कहलाता है। तो 99.99% लोग इस दुनिया से 100 साल के अंदर ही जाने वाले हैं। हम अपने औकात को नहीं बचाएंगे तो हम दफन कहाँ होंगे मेरे भाई? राहत इंदौरी का एक शेर है ना, क्या खुद ही शेर उन्होंने कहा था कि अफवाह थी कि हम बीमार हैं, क्या अफवाह थी कि हम बीमार हैं, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। अगला जुमला जो उन्होंने बहुत तारीफी कहा, ये जुमला कहा कि 2 गज ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। सोचने का मकाम है। एक इंसान क्या कहते हैं कि अपना घर साहेबगंज में बना करके रखा हो, दूसरा घर क्या कहते हैं कि यहाँ की कैपिटल रांची के अंदर बना के रखा हो, तीसरा घर क्या कहते हैं पटना में बना करके रखा हो। अगर वो मरता है तो उसका घर वाला कोई भी उसको घर के अंदर दफन नहीं करता है, कोई भी दफन नहीं करता है। उसको आप डाक चीख करके पुकार करके कहते रह जाओगे कि भाई आपने 4-4 फ्लैट खरीद रखी है, आप किसी में से एक को मुंतखब कर लें, तो वो इंसान कुछ बोल नहीं पाता है। और अगर उसके रिश्तेदारों को भी कह दिया जाए कि भाई आप रख लो किसी एक घर में, वो भी रखने के लिए तैयार नहीं होता है। असल घर जो इंसान लेटता है कब्र के अंदर ही लेटता है। कहा ना कि 2 गज ही सही मगर मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सोचने का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जहां इसके खिलाफ, बिल के खिलाफ, एक्ट के खिलाफ क्या कहते हैं कि ईमेल करने की बात आई थी, ईमेल करने की बात आई थी। हिंदुस्तान के अंदर 36 करोड़ मुसलमानों की आबादी है। मेरे ख्याल से अभी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ जीमेल को, 36 करोड़ के मुकाबले में 1.5 करोड़ जीमेल को में काफी तो नहीं, कहाँ काफी? इनमें से सर्वे के मुताबिक आप 36 करोड़ हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सर्वे नहीं हुआ है, छोटा है, या फिर क्या कहते हैं कि उनका आधार कार्ड नहीं बना है, या फिर उनका पैन कार्ड, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट नहीं बने हैं, तो सरकार की नजर में वो तो नहीं ना है, वो तो नहीं है। दोस्तों बुजुर्गों, फिर क्या कहते हैं कि सिर्फ 36 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ का पहुंचना हमारे लिए अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। कहते हैं ना कि शायर ने कहा ना कि अगर अब भी न समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, अगर अब भी न समझे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, कि तुम्हारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में।
हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ लाल किला बच जाएगा, एक जामा मस्जिद बच जाएगी, इसके अलावा तमाम मसाजिदों के ऊपर आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। तो सोचने का मकाम है। आप में से बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने जीमेल कर दिया, हाथ उठा के बताएं, हाथ उठाएं। किया है? हाथ उठा के बताएं, जीमेल किया है? अगर सरकार ने किसी ने ये बिल क्या कहते हैं इस ताल्लुक से जीमेल करने के लिए हमें कहा था, तो हम इस ताल्लुक से अगर क्या कहते हैं कि अपनी होश के नाखून चिबा रहे हैं या फिर अपने ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं हो रहे हैं, तो अफसोस की बात है, बहुत बड़ी सोचने का मकाम है कि आज 13 सितंबर है, आज ही तक तारीख है 12 बज रात, ठीक है, आज ही तक तारीख है, आज ही तक तारीख है, इसको याद रखें। सबसे पहले तो कोई आप में से कोई साथी ऐसे तैयार हो जो क्या कहते हैं कि इस काम को करवाने के लिए आमादा हो, यानी घर जाकर के वो क्या कहते हैं घर के खवातीन हो या फिर घर के लोग जिन्हें जीमेल नहीं करना आता हो, उनसे मोबाइल लेकर के, उनके पास स्मार्टफोन हो, उनसे मोबाइल लेकर के लिंक के जरिए से या फिर क्यूआर कोड के जरिए से स्कैन करके वो जो एहतजाज दर्ज कराना है, प्रोटेस्ट दर्ज कराना है, कौन तैयार हो? बताएं अपनी तरफ से, कौन तैयार हो? बताएं। कासिफ, तैयारी नहीं होगी? कहाँ है वो सिराज भाई लोग कहाँ है? सिराज भाई लोग कहाँ है? जमशेद भाई हैं? ठीक, आप कम से कम क्या कहते हैं 6 से 7 लोगों की टीम बनाए, 10 लोगों की टीम बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं जो लोग यहाँ पर आए मौजूद हो, यहाँ पर आकर के करें, तो यहाँ पर आप उनका स्कैन कर दें या जो भी तरीका है उनका करने का वो कर दें, और आप भी रहोगे, ठीक है। कहाँ कुर्बान कहाँ है? आप भी रहोगे। तो ये लोग क्या कहते हैं कि घरों के अंदर जा करके वहां पर बहुत सारी फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं ख्वाब गफलत में सोई पड़ी हैं, क्या कहते हैं उनका भी मोबाइल लेकर के लिंक के जरिए से इसके ताल्लुक से एहतजाज दर्ज कराएं, लाजमी तौर पर कराएं। अरे भाई आप अपने ईमानी होने का या मुसलमान होने का जज्बा ऐसे मौके पर नहीं दिखा सकते हैं, तो कब दिखाओगे? हाँ, मुहर्रम के मौके पर 10 से 15 चोंगा लगा करके सब क्या कहते हैं मुसाफिरीन को और अपने इमामों को, मोहल्ले के लोगों को परेशान करने का नाम ईमान थोड़ी है। हाँ, मोहल्ले के लोगों को यहाँ तक कहा जाता है कि आवाज़ की आवाज भी सिर्फ मोहल्ले तक होनी चाहिए, हमारी लाउड स्पीकर इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि गैर मुस्लिमों के आबादी में क्या कहते हैं कि उनके कानों में अजान पड़े। हमारे अजान से उनका क्या ताल्लुक है भाई? वो नमाज के लिए आएंगे, वो नमाज के लिए आएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ आजान के लिए जब आवाज को इतना खतरनाक बना दिया जाता है, इतना चोंगा लग हमारी आवाज जाए वहां पूरी पार का जाए सकरी गली का अरे भाई वहां तो मस्जिदें खुद है ना, वहां की मस्जिदों की जिम्मेदारी है ना अपने मोहल्ले के क्या कहते हैं लोगों को बेदार करना, वहां की आवाज चली जाएगी। लेकिन क्या कहते हैं कि हम ऐसी चीजों के ऊपर अपना दिमाग लगाते हैं जिनका दिन का कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों बुजुर्गों सोचने का मकाम है, इस बारे में फिक्रमंद हो, और जो बताया गया है जितने साथियों को तैयार किया गया है ये क्या कहते हैं एक्टिव होंगे नमाज जुम्मा के बाद इंशाल्लाह, ठीक है। अपनी बात खत्म कर दे।